जी, अस्सलाम वालेकुम everyone. मेरा नाम सैयद मोहसिन अली शाही जी. I'm the head of retail products at HPL. I will be your host for today. I am very delighted to welcome you all to this webinar on Roshan Digital Account, which is being hosted by HPL, the State Bank of Pakistan, and the Embassy of Pakistan in Oman. Today we have, I'm very pleased that today we have with us senior officials of the State Bank of Pakistan as well as the Ambassador of Pakistan in Oman. The purpose of this webinar today, this interesting session that we put together, इसका idea ये था कि हम Roshan Digital Account जो एक बहुत ही ground breaking initiative है, thanks to the thought leadership of our Honorable Prime Minister Imran Khan, उसके ऊपर हम awareness create करेंगे. And इसके अंदर the idea for HBL to do this was to make sure कि हम State Bank को भी साथ रखें, उनकी guidance के साथ इसको लेके चलें ताकि we can answer your questions, we can present to you what the platform is all about. And the idea is for Roshan Digital Account as a groundbreaking thought was to make it convenient for non-resident Pakistanis ताकि वो अपने बैंक अकाउंट्स पाकिस्तान में खोल सकें और उनके लिए convenience का एक मयार तय हो सके. To start off the session, I will begin with the recitation of the Holy Quran, followed by our national anthem, and then I will do the further introductions. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Can I ask my colleagues to put up the national anthem, please, after which I will do the introductions formally. पाक सरज़मीन शाद बाद ईश्वर हसीन शाद बाद तू निशाने अज़्मे आली शान अज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन शाद पाक सरज़मीन का निज़ाम शाद बाद मंज़िले मुराद परचमे सितारों हिला रहबरे तरक्कियों कमाल तर्जुमाने माज़ी शाने हाल जाने इस्तक़बाल हमारा सासा पाकिस्तान के लोग, उनके ख्वाब और रोशन मुस्तकबिल है. जहां ख्वाब वहां HPL. Thank you, Ji. Moving along, I am honored to introduce the main speakers of this webinar. Today we have with us His Excellency Mr. Ehsan Vagan, the Ambassador of Pakistan in Oman. We're very pleased to have you, sir. Thank you for taking time out for helping us organize this and for gracing us with your presence. He is an esteemed member of the Foreign Service of Pakistan for over 25 years. He joined in 1994. His Excellency Vagan Sahab has previously served as Deputy Consul General to the Council of Pakistan in LA in the US, as the Deputy Chief of Mission in the Embassy of Pakistan in Oman, and the head of the mission in Embassy of Pakistan in Niger. He has also held a position within the Ministry of Foreign Affairs in Islamabad, including as a Director for Economic Coordination and the Director for the Americas Division. Thank you for joining us today, His Excellency. We also have with us and are very pleased to have with us today Mr. Saeed Irfan Ali, the Managing Director of Deposit Protection Corporation, State Bank of Pakistan, who will be walking us through the features of the Roshan Digital Account. Irfan Saab is a seasoned banker with over 29 years of notable experience under his belt. He has previously held the position of Executive Director, Banking Policy and Regulation Group and Banking Supervision at State Bank of Pakistan. He has also served as Director General, Financial Monitoring Unit, FMU. Mr. Irfan Ali is a banking sector policy expert and advisor. His groundbreaking thought and innovation has led to many policies, which has led to where Pakistan is in the digital space. His expertise
also includes, amongst others, banking and non-banking regulation, payment systems, AML, CFT, financial markets, and fintech. Irfan Saab has been associated with various committees, working groups, and also represented State Bank of Pakistan and the country at various domestic and internal forums like FATF, APG, IMF. He is a prolific speaker, somebody that I'm personally very fond of, and I look forward to always listening to his point of view. He covers a wide range of industry subjects. और हमारे सब के लिए he's a very, very senior banker and a policy maker that we look forward to and look up to. He has been constantly engaged tirelessly in speaking both in Pakistan and abroad at many forums. He is a professional trainer on a broad range of subjects. However, his main forte remains and continues to be branchless banking, जिन्होंने जिस area के अंदर इरफान साहब ने बहुत groundbreaking efforts kiye, initiatives kiye, which is why branchless banking ke andar Pakistan is where it is today. So thank you, His Excellency Mr. Ehsan Vagan, Irfan Ali Saab, for gracing us with your presence. I would like to now move to hand over the stage to His Excellency Mr. Ehsan Vagan, after which I'll ask my colleagues at State Bank, Mr. Irfan Ali, to say a few words. With that, sir. Bismillahir Rahmanir Rahim. The participants from the State Bank of Pakistan, senior officials, bankers, colleagues from the Habib Bank of Pakistan, our co-hosts from Oman, Habib Bank of Oman, viewers, Assalamu Alaikum, and very good afternoon. At the outset, let me offer my deep appreciation and gratitude to the Habib Bank management, and especially our team in Oman, for organizing such an important webinar on Roshal Digital Accounts initiative as envisioned by the Prime Minister of Pakistan. Our leadership has immense confidence and trust in the non-resident Pakistanis. As you all know, they have played a significant role in making contribution in shape of foreign remittances. I must acknowledge and deeply appreciate the contribution made by Pakistani community living in Oman since the beginning. For the nonsense started almost 50 years now. We have seen large number of Pakistani community members living in this country. Over the period of time, our largest community number was almost 350,000, but because of the pandemic and because of the effects of coronavirus, this number has substantially decreased. As of today, we speak, we have 220,000 strong Pakistanis working in various disciplines in this country. They have a tremendous contribution in banking sector. They have done immense contribution in infrastructure development. And I'm happy to inform all the participants and the viewers that the Habib Bank has the premier institution of Pakistan, which was established in 1972. This bank is one of the leading and the oldest bank in the country, besides two other, this is the third oldest bank. Besides Habib Bank, we have an SPAC and PIA, which is a premier institution serving the community and building bridge between Oman and Pakistan. I will say a few words about Oman and Pakistan relationship. I took over charge last year on 18th December 2019 as Ambassador for Pakistan. This is my second stint as what the host was informing. I was here as a deputy head of mission or deputy ambassador from 2009 to 2013. And we have personally seen and witnessed the contribution made by Habib Bank of Pakistan in Oman. Habib Bank is a leading bank in this country and is very well-known institution. So I wish the continuation of professional competence, professional services being extended to Pakistani community and other communities is highly regarded. Pakistan and Oman enjoy a great relationship. These relationships cover the entire gamut of bilateral relations, whether it is a political, whether it's a commercial and defense, or as a community. As you know, according to our estimates, Oman's 30% population is of Baloch origin. These Al-Balochis called here in Oman, they have risen to the highest positions. They have been the cabinet ministers, they have been the undersecretaries, and you must know that the current
country head is also Al-Balochi. So these Al-Balochis or our Baloch origin people have contributed immensely for integration or enhancing people-to-people contact between the two countries. So our relationship was very deeper. There's a centuries-old relationship, which I always encourage our Omani brothers that we need to focus on the commonality of views at regional levels, at international levels. And I'm also happy to inform that there's a sizable number of Pakistani military personnel. They are working on deputation in Omani forces. Day before yesterday, I called on the Deputy Prime Minister for Defense Affairs, where he greatly acknowledged and appreciated role played by the Pakistani community in various disciplines. This brings me to the contribution of foreign remittances. Last month, we also organized a webinar with the State Bank of Pakistan, and 4 missions participated: Pakistan, Oman, Bahrain, Qatar, and Kuwait. According to the latest statistics provided by State Bank of Pakistan, our contribution from Oman is almost $1 billion. Last year, on 2019 and 2020 financial year, we have remitted around $994 million from Oman. So this makes us as a 3rd largest contributor in the field of foreign remittance. So with this, the role of Habib Bank and bridging the gap and connecting with the leading community figures is highly appreciated and is of utmost importance. So I believe such webinars and the initiatives taken by the mission, Embassy Pakistan, and our Habib Bank Oman will create certainly a great awareness about this Roshan digital accounts. And with this initiative, I believe the team in Oman will reach out the prominent Pakistani Omani community members for attracting and offering services to have more accounts. Last time when we were, today Habib Bank will tell us about how many Roshan digital accounts have been opened up. Last time it was almost 150 accounts which were opened. So this is a healthy sign. I have been encouraging our community. I've been calling upon them to open more accounts with Habib Bank, as Habib Bank is open 24/7 to offer services and address their queries and provide the information. With this, I once again thank you, State Bank of Pakistan. Thank you, Habib Bank of Pakistan, for making it possible to attend this, organize this important webinar. Before concluding, I must inform that before joining the Foreign Service of Pakistan, I was a banker too. I started my career with the National Bank of Pakistan. I was a grade 2 officer. I got into the civil service and I did part 1, part 2 exam. I was set to be the banker, but landed in the Foreign Service. So you consider me as a part of your banking family. Wherever I have been interacting very closely with our premier institutions. So rest assured, my support will always be there, and wish you best of luck. I'm very thankful, His Excellency Vagan Saab, for your kind words, for your warm sentiments, and particularly the bridge that you built between our country and Oman, and all the hard work and effort that you put in. It's heartening to hear that you're also a fellow banker and you share the same background with us. A pleasure to have you on board, and thank you for your time. With that, Irfan Saab, I would like to request your presentation. Your words always inspire us. हमारे बहन भाई जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, they're all looking forward to hearing details from you on this, and particularly and more importantly your words of wisdom that will help us, all of us, to make this a bigger and better digital Pakistan. Thank you so much, Mohsin Ali Shah sahab, and thank you, बहुत शुक्रिया आपका एहसन वगान साहब. और मेरा दिल कर रहा था कि जब आप बात कर रहे थे तो मैं आपकी बात सुनता रहूँ. एक्चुअली मैं नहीं चाह रहा था कि एहसन वगान साहब अपनी बात ख़त्म करें, और माशाल्लाह जो आपका अंदाज़े बयान है वो बड़ा खूबसूरत है, और जिस तरह आपने ओमान का तारुफ कराया उससे मुझे ऐसा लगा कि ओमान हमारे बहुत ही करीब है. So as an ambassador, माशाल्लाह the role that you will be playing, उसके लिए पाकिस्तान को हमेशा फ़ायदा ही होगा. And with your permission, Your Excellency, I'd like this presentation to be both bilingual, अगर आप इजाज़त दें. जी, please. तो हमारी कोशिश होगी कि viewers हमारे ज़्यादा तो
तो मैंने कहा अंग्रेजी सारा दिन चलती है, लिखते हैं, तो पाकिस्तानियों के साथ उर्दू में बात कर ली जाए तो बहुत बहुत आसान होगा। बाकी तो सर प्राइमरीली आप सबके लिए दूर रहकर भी पास। तो जो एहसन वगान साहब ने कहा, ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स का जो कॉन्सेप्ट था, वो दैट वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। बट एनीवे, बीइंग a person who facilitates technology and who is part of policy making for years, so to facilitate Pakistanis living abroad to enable them to open accounts in Pakistan was a dream come true. But to be fair, ये हमसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम था, which was then owned by the governor, and then we, the staff, made sure that Pakistanis are adequately facilitated. तो प्राइमरली ये बात हम कर रहे हैं दूर रहकर भी पास, और पाकिस्तानियों के पास ये इख्तियार है कि वो ओमान में बैठकर पाकिस्तान में किसी भी बैंक इंक्लूडिंग हबीब बैंक में अकाउंट खोलें और अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करें। अच्छा, ये राइट, जब ये इस तरह का अकाउंट खोला जाता है तो जो डिजिटल है, और इसका मतलब ये है कि बहुत ही कम अरसे में आप ऐसा कर सकते हैं। और तीसरा इसका सबसे बड़ा, वो ये बात काइंडली मैं अपने जो लोग हाजिर हैं और इस प्रेजेंटेशन में मौजूद हैं उनके लिए बताता चलूं कि जो क्रिटिकल बात है, जो हमेशा आप याद रखिएगा, रोशन डिजिटल अकाउंट वो अकाउंट है जिसे आप पाकिस्तान से पैसे वापस मंगा सकते हैं। आप जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेजते हैं हर माह हर साल, वो रेमिटेंस पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव के तहत पाकिस्तान को लैंड करती है। वो पैसे आप वापस नहीं मंगा सकते, वो पैसे आप पर, ये वो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप करते हैं तो आप ये पाकिस्तान से जब चाहें वापस मंगा सकते हैं, जिस मुल्क में चाहें भेज सकते हैं। तो इसकी जो रीपैट्रिएबिलिटी है हमारी ज़बान में, वो सबसे क्रिटिकल है। तो दूर रहकर भी पास रोशन डिजिटल अकाउंट आपको एक डिजिटल एक्सपीरियंस देता है, और आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देता है, और आपको ये पैसा वापस ले जाने की अहलियत मुहैया करता है। और नॉट ओनली दैट, रेगुलेटर ने बैंक्स को ये इजाज़त दी है कि स्टेट बैंक के पास आपको किसी अप्रूवल के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी पैसा जब आप वापस ले जाएंगे तो हबीब बैंक आपसे ये नहीं कहेगा कि मैं स्टेट बैंक से पूछूंगा। हबीब बैंक आपकी इंस्ट्रक्शंस पे आपके पैसे जहाँ आप चाहेंगे वापस भेज देगा, और उसमें ज़ाहिर है आपकी मर्जी है कि आप प्रिंसिपल अमाउंट ले जाना चाहें, आप प्रॉफिट ले जाएं, आप रेंटल इनकम ले जाएं, आपने जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की वो ले जाएं। तो हकूक जो हैं वो सारे आपके। मेरे पास एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन है, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं, अगर मुझे शेयर स्क्रीन की इजाज़त हो तो। मोहसिन, अगर मेरे पास इजाज़त है शेयर स्क्रीन की। जी इरफान साहब, आप शेयर कर जी सर, बिल्कुल इरफान साहब, आप यू गॉट द, ठीक है जी। ये रोशन डिजिटल अकाउंट दूर रहकर भी पास, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इनिशिएटिव है, प्रेजेंस लेस एंड रीपैट्रिएबल अकाउंट। तो ये पाकिस्तान में अब अवेलेबल है। 8 बैंक्स हैं, देयर आर मोर इन द पाइपलाइन। Hopefully by the end of this year 2 more banks would be added, and by next year there would be more banks added to it. But primarily ये हमारा HBL, मिज़ान और दूसरे लोग बहुत ही एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। और अभी बैंक तो जैसे एहसन वगान साहब ने कहा, आपका पसंदीदा बैंक है, तो हमारा भी पसंदीदा है, और इंशाल्लाह आप लोग इसमें ज़्यादा अकाउंट्स खोलेंगे। इसका स्नैपशॉट जो है वो प्राइमरली आपको ये बताता है कि ये प्रेजेंसलेस है, और ये पहली दफ़ा हुआ है, और आप इसमें अकाउंट्स पाकिस्तानी रुपये में भी खोल सकते हैं और डॉलर्स में भी खोल सकते हैं। इनफैक्ट 11 करेंसीज तक की ऑप्शंस हैं जिसमें खोल सकते हैं। बट ये मोहसिन आपको बताएंगे कि हबीब बैंक कितनी करेंसीज इजाज़त दे रहा है, बाकी कोई बैंक 8 खोल रहे हैं, कोई 4 की इजाज़त दे रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन के कस्टमर की डिमांड क्या है। बट सबसे अहम बात यह है, एट द वेरी एंड आपको 2 चीज़ें अहम हैं, आपके पास आईडी होनी चाहिए और आपके पास डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए ये अकाउंट्स खोलने के लिए। अच्छा, इससे ज़्यादा आप लोग, क्योंकि ओमान, जैसे कि एहसन वगान साहब ने बहुत ही खूबसूरती से बयान किया, वो जो प्रोवर्बियल कहते हैं ना, स्टोन थ्रोज अवे, यू नो, तो मुझे बिल्कुल ओमान ऐसा ही लगा जैसे कि ये रहा। और मुझे मारा के लोग बताते हैं कि ओमान अगर मौसम क्लियर हो तो वहाँ से नज़र भी आता है। और बाय द वे सेंट्रल बैंक में, जैसे एहसन साहब ने पाकिस्तान में काम किया, सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान में स्टेट बैंक
कि कुछ लोग कुछ डेपुटेशन पे और कुछ लोग जिन्होंने स्टेट बैंक में काम किया हुआ है वो वहाँ काम करते हैं. तो ओमान इज वेरी वेल नोन टू अस, and so we will be very pleased to facilitate the Pakistanis resident in Oman. अच्छा, उसके बाद जो सिंपल डॉक्यूमेंटेशन तो है ही, बट बैंक के लिए, अभी बैंक के लिए पाबंदी है कि जब आप अपनी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें तो इन्होंने 48 घंटे के अंदर अंदर ये अकाउंट खोलना है. अब 48 घंटे जो है वो प्राइमरली बैंक आपकी ड्यू डिलिजेंस करता है, आपके बारे में पता करता है कि जो आप कह रहे हैं वो दुरुस्त है. और जैसे ही बैंक को पता चलता है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट की वो वैलिडेट हो रही हैं, तो बैंक आपका अकाउंट खोल देगा. और अकाउंट खोलने के साथ ही आपकी जो राह है टू गेट इन टच विद पाकिस्तान डायरेक्टली फाइनेंशियली वो खुल जाता है. अब हम इसमें क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आपको एक लाइफस्टाइल अपॉर्चुनिटी मिले और आप ओमान में बैठे हुए अपने वालिदैन के घर का बिजली का बिल पे कर दें, अपने बच्चे की स्कूल फीस पे कर दें, कॉलेज यूनिवर्सिटी की फीस पे कर दें, गाड़ी का चलान पे कर दें अगर किसी का चलान पे हुआ. तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय लाइफस्टाइल. और आप इसको इसी अकाउंट को यूज़ करते हुए अभी बैंक की कोई प्रोडक्ट्स खरीद लें, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट कर दें, इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट कर दें, स्टॉक मार्केट में लगा दें, प्रॉपर्टी खरीद लें. बट शर्त प्राइमरीली जो आप सबको जहन में रखनी है वो ये है कि आपने ये सब कुछ रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए करना है. तो जो अमाउंट रीपैट्रेबल है, जिसको आप वापस ले जा सकते हैं, वो वही अमाउंट है जो आप हमें भेजेंगे थ्रू रोशन डिजिटल अकाउंट. अगर आपके पहले से यहाँ कोई अकाउंट्स हैं वो चलने दें. वो अकाउंट रिमेंबर, जैसे मैंने आपको प्रेजेंटेशन के शुरू में बताया, वो रीपैट्रेबल नहीं है. अगर आपकी यहाँ पहले से कोई प्रॉपर्टी है और उसका आपको रेंट आ रहा है तो वो भी रोशन डिजिटल अकाउंट में जमा नहीं हो सकता. तो रोशन डिजिटल अकाउंट एक नया इनिशिएटिव है. इसमें जो पैसे आप इसके जरिए लाएंगे और इन्वेस्ट करेंगे वो आप ले जा सकेंगे और प्रॉफिट के साथ ले जा सकेंगे, और नहीं ले जाना चाहें तो आपकी मर्जी है, आप पाकिस्तानी हैं, आप जिधर भी ये पैसे रखें. तो एहसन वगान साहब, अगर आप और आपकी कम्युनिटी के जो लोग ओमान में रहते हैं, जब आप पाकिस्तान वापस आएंगे तो तब भी आपके हकूक आपके पास रहेंगे उस हद तक जब तक कि आप ओमान में रहे और आप पैसे इस अकाउंट में भेजते रहे. क्योंकि अब आप पाकिस्तान में आ गए हैं, सब जब भी आप आएंगे तो फिर आप नॉन रेजिडेंट, आप रेजिडेंट पाकिस्तानी हो जाएंगे. अब आप नॉन रेजिडेंट नहीं रहे तो आपके हकूक चेंज हो जाएंगे. बट जो पैसे आपने रोशन डिजिटल अकाउंट में भेजे, वहाँ उस हद तक आपके हकूक हमेशा रहेंगे और वो पैसे आप भी चाहेंगे तो वापस भेज सकेंगे. तब ये पाकिस्तानी पर डिपेंड करता है कि वो पैसों का क्या करना चाहते हैं, री इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मजीद कुछ खरीदना चाहते हैं. बट जब आप पाकिस्तान वापस आ जाएंगे तो ये बात याद रखिएगा कि आप रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, आपके हकूक वो नहीं है जो नॉन रेजिडेंट्स के. ये बात काइंडली याद रखिए. बट हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं और लाइफस्टाइल का मतलब ही है कि आपको घर बैठे और फैसिलिटी अवेलेबल हो, आपको अपने घर से जाना ना पड़े. अच्छा जी, ये वो बैंक्स हैं जो रोशन डिजिटल अकाउंट में पार्टनर करते हैं, जिसमें बैंक अल्फला, फैसल, HBL, MCB, मिजान, सांबा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और UBL. ये वो प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस हैं. बट जैसे मैंने आपको अर्ज की, इनके अलावा भी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आ रहे हैं, पाइपलाइन में हैं. बट अभी बैंक ऑब्वियसली बीइंग अ प्राइम द स्टार इंस्टीट्यूशन हैज टेकन द लीड. अच्छा, मैं स्टैटिस्टिक्स भी आपके साथ थोड़ी शेयर कर लेता हूं. मैं जो कल तक की स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें 50,000 से ज़्यादा अकाउंट्स फाइनेंशियल सेक्टर ने खोल दिए हैं और उसमें तकरीबन अच्छी खासी उसमें अमाउंट आ चुकी है जो कि $100 मिलियन से भी ज़्यादा है. बल्कि इनफैक्ट कल $110 मिलियन भी हमने क्रॉस किए. तो रोज़ाना तकरीबन 700 अकाउंट खुल रहे हैं, वीकेंड पे 1100-1200 खुल रहे हैं और रोज़ाना $2.5 से $3 मिलियन आ रहे हैं. और ये अमाउंट दिन ब दिन अब बढ़ती जा रही है और पाकिस्तानी इसका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है. कल जो हमने वेबिनार किया इसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान एम्बेसी, हसन साहब वीवर 3 मुल्कों के एम्बेसडर थे, 3 मुल्कों में पाकिस्तान के एम्बेसडर थे, जिसमें डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन था. तो नॉर्डिक कंट्रीज के साथ था और पाकिस्तानी इसका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा था और पाकिस्तानी इसके साथ हमने इंटरेक्ट किया और उनके सवालों के जवाब भी दिए. अच्छा, जब आप इन बैंक्स की वेबसाइट पे जाते हैं, अबीब बैंक की लाइट से आप वेबसाइट पे गए तो अबीब बैंक आपसे कुछ सादा सवाल करेगा
उसमें सादगी में जो और आई मीन एक्चुअली सादा, और आप सब लोगों के इल्म में है कि हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फैट ऑफ एक्शन प्लान से गुजरे हैं, और फैट ऑफ एक्शन प्लान ने काफ़ी डिमांड्स हम पे क्रिएट की हैं। फॉरेन ऑफिस को बहुत अच्छी तरह पता है, इनके डीजी यूएन स्टेट बैंक के साथ और फाइनेंशियल सेक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करते रहे। तो ये एक ट्राइंग और एक बहुत ही एक मतलब पाकिस्तान एक तकलीफ से गुजरा है फैट ऑफ एक्शन प्लान को कंप्लाई करने में, पर अल्हम्दुलिल्लाह 27 जो नकात थे फैट ऑफ एक्शन प्लान से, उसमें से 21 पर हम फुली कंप्लाइड हैं। एंड यू विल बी फर्दर प्लीज दैट उन 21 में से जो स्टेट बैंक या फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड थे, दे ऑल स्टैंड कंप्लाई। तो पाकिस्तानी को अब इस परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि जी हमारा फाइनेंशियल सेक्टर किसी किस्म के रिस्क में है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि ये सिंप्लीफाइड डिजिटल अकाउंट है, तो इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन? तो देखें, अगर आप अपने लेफ्ट पे देखेंगे तो हम सिर्फ आपका नाम बल्दियत पूछ रहे हैं, माँ का नाम, वालदा का नाम पूछ रहे हैं, प्लेस ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं, CNIC अगर आपके पास है तो, अगर आपके पास नाइकॉप है, POC नंबर है, तो ओमान में रहने वाले आई विल एज्यूम पाकिस्तानी के पास CNIC होगा या नाइकॉप होगा, और वो डुअल नेशनल है। यूरोप में अलबत्ता हमें ये चैलेंज आता है जिधर हमें पॉइंट ऑफ POC है। जब POC का मतलब यह है कि वो पाकिस्तानी जो कोई भी लिंक पाकिस्तान के साथ रखते थे किसी भी वक्त, पॉइंट ऑफ ओरिजिन कार्ड है इसका मतलब ये। बट ये चैलेंज ओमान बेस्ड पाकिस्तानी को तो होपफुली नहीं होगा। पासपोर्ट नंबर चाहिए, जहाँ के भी आप नेशनल हैं वो बताएं, आपका ईमेल, फ़ोन, कंप्लीट एड्रेस। फैट का ये पूछता है कि आप अमेरिकन नेशनल तो नहीं है। कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन, ये यूरोपियंस वगैरह के लिए ज़्यादा अहम है। इसका प्राइमरी मतलब ये है कि जी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ये शेयर की जाएगी आपकी टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ। तो जिस भी मुल्क के आप रेजिडेंट हैं, आप इस वक्त जो निज़ाम है इंफॉर्मेशन शेयर करने का, आपकी तमाम इंफॉर्मेशन मुल्क एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो उस टैक्स रिलेटेड मैटर्स में देयर इज़ नो सीक्रेसी एज सच। अदर देन द गवर्नमेंट ट्रीटीज़ जो कि होती हैं उसमें सीक्रेसी होती है और आपका जो डाटा है वो फुली प्रोटेक्टेड होता है। पर टैक्स रिलेटेड मैटर्स में आपके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ शेयर की जाती है। तो ये बात आपको हर वक्त ध्यान में रखनी है। और ये भी काइंडली आप ध्यान में रखिए कि पाकिस्तान अब ग्रेजुअली एक टैक्स पेइंग मुल्क बनता जा रहा है। और अगर आप FBR की जो देखें, वो जो मूवमेंट्स चलती हैं बहुत, और जो डिजिटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हुई है, अब कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो सीक्रेट नहीं है। तो पाकिस्तानी इसको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं या बाहर रहते हैं, ओमान आई बिलीव इज़ नॉट अ टैक्स ओरिएंटेड सोसाइटी। उधर एक डिफरेंट टैक्स रिजीम है मेरे ख्याल में, जैसे पूरे मिडिल ईस्ट में है, पर पूरी दुनिया एक टैक्स ओरिएंटेशन की तरफ हमसे बहुत पहले जा चुकी है, और पाकिस्तान भी उसकी तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, अगर आपने राइट पे देखेंगे तो जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताई, आपका स्कैन पासपोर्ट चाहिए, प्रूफ ऑफ NRP स्टेटस चाहिए, यानी आप ओमान में रहते हैं, तो आप काइंडली अपने पासपोर्ट पे जो वीज़ा लगा हुआ है या आप एंट्री की स्टैंप है, जो भी आपके पास प्रूफ है जो कि ये बताता है कि आप ओमान के रहायशी हैं, वो आपको अपने बैंक के साथ शेयर करना है। फिर आपको प्रूफ ऑफ प्रोफेशन देना है, वो आपकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट का लेटर हो सकता है, सैलरी स्लिप हो सकती है। आपको लाइव फ़ोटो है, वो जब आप अकाउंट खोल रहे होंगे तो वहीं पर आपको जो है वो लाइव फ़ोटो नज़र आ जाएगी। आपकी बैंक आपकी खुद से तस्वीर खींच लेगा और आपसे वेट सिग्नेचर भी ऑनलाइन करवा लेगा। जैसे मैंने आपको पहले अर्ज की कि जो हमने कहा था ये स्वीट ऑफ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है, तो आप अपने बिल्स पे करें जब भी आपका अकाउंट खुल जाए, आप ई-कॉमर्स करें, आप वारदा से कपड़े लें, आप खाड़ी में जाएं, आप कुछ भी, आप दराज पर शॉपिंग करें, आप यू नेम इट, व्हाटएवर यू वांट, जैसे मैंने अर्ज की कि अभी मैं कल मेरे बैंक ने मुझे लिस्ट भेजी, उसमें एक लिस्ट में लिखा हुआ था कि जी 200 स्कूल्स के बच्चों की फीस आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, 200। तो देयर नंबर ऑफ बैंक्स जो कि आपको ये फैसिलिटी देगा। तो जो मेरे लिए जो बड़ी खुशी की बात यह है कि आप में से बहुत से लोग जो पैसे पाकिस्तान भेजते हैं, यू विल एग्जैक्टली नो व्हाट इज हैपनिंग टू योर मनी
एंड यू विल आल्सो फाइंड अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट। तो इसलिए अगर आप अपने राइट में देखेंगे तो जो इन्वेस्टिंग नया पाकिस्तान सिंडिकेट्स हैं, ये रिस्क फ्री डॉलर्स और पीकेआर बिल्स हैं, इसमें ज़बरदस्त रिटर्न्स हैं और ऐसी रिटर्न्स पाकिस्तान में तो नहीं है, और वो भी सिर्फ एनआरपीज के लिए, आपके लिए हैं और किसी के लिए ये हैं भी नहीं। उसके बाद आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पर मैं थोड़ी देर में बाद आता हूँ, और आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। तो वो जो तमाम ख्वाहिशें आप दिल में लिए बैठे थे वो आराम से अब पूरी हो सकती हैं ओमान बैठ के, आपको पाकिस्तान आने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो नया पाकिस्तान सिंडिकेट्स हैं ये डॉलर्स में और रुपीज़ में हैं, जो कि 5 मुख्तलिफ टेन्योर्स हैं, 3, 6 माह, 12 मंथ्स, 3 years एंड 5 years, जिस पे रेट आपको राइट पे नज़र आ रहा है 5.5, 6, 6.5, 6.7, 5 और 7। डॉलर्स में ग्लोबली जो रेट दिया जाता है वो 0.0 कुछ होता है, 0.25, 0.5। पाकिस्तान में भी अगर आपके का डॉलर अकाउंट है और उसमें आपके डॉलर्स बने हुए तो आपको 0.25, मुझे करेक्ट कर देना अगर मैं कहीं गलत कह रहा हूँ, बट इसमें जो रेट है वो ये दिया जाता है। तो ये जो वेरी रिस्क फ्री रिटर्न्स हम क्यों कह रहे हैं, रिस्क फ्री इसलिए है कि सॉवरन यानी हुकूमत पाकिस्तान इसको ओन कर रही है, और फर्दर इन अकाउंट्स को प्रोटेक्शन अंडर अ लॉ है, जिसके तहत आप जो है वो जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो लीगली प्रोटेक्टेड है। कोई टैक्स नहीं है आपके लिए, सिर्फ आपको 10% प्रॉफिट पे विदहोल्डिंग टैक्स देना है, वो बैंक खुद से काट लेगा। जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट हैं ये शरिया कंप्लाइंट वर्जन में भी अवेलेबल है, तो आप में से जो लोग शरिया कंप्लाइंट वर्जन में इंटरेस्टेड हैं तो वो शरिया को भी, और शरिया कंप्लायंस का आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में शरिया कंप्लायंस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग और वेल ऑर्गेनाइज्ड निज़ाम है फाइनेंशियल सेक्टर में, जो अपने तमाम शरिया के प्रोटोकॉल फॉलो करता है। सबसे अहम बात जो मैं आपको पहले ही बता चुका था, ये तमाम पैसे फुली रिपैट्रिएबल हैं। आप ओमान में रहते हैं, ओमान में ले जाएं, कनाडा रहना चाहते हैं वहाँ ले जाएं, अमेरिका जाना चाहते हैं वहाँ ले जाएं, the choice is entirely yours। उसके बाद आप अपने पैसे स्टॉक्स में भी लगा सकते हैं। आपको करना सिर्फ ये है कि अपने बैंक को कंसेंट देनी है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने बैंक के साथ शेयर की वो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी को भी दे दें। सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी वो इदारा है जो ब्रोकर्स और आपके दरमियान में और बैंक के दरमियान में लिंच पिन का रोल प्ले करता है। वो आपका जो आप स्टॉक खरीदते हैं वो वहाँ डिजिटली रिकॉर्ड हो जाते हैं और वो सेटलमेंट का भी काम करता है। तो जो बैंक तो आप जो भी ब्रोकर आप चूज़ करेंगे, नंबर 2 इसमें देखिए आ रहा है कि जो पहले आप बैंक को कंसेंट दें कि आप इंफॉर्मेशन ब्रोकर को दे दें, ब्रोकर चूज़ करें, शेयर बाय करें और बैंक को इजाज़त दे दें कि वो ब्रोकर के पैसे उसको दे दें, और CDC अल्टीमेटली इसको सेटल कर देगी, तो आपका काम आसान हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। आपका बैंक इस पे फर्दर तफसीलात बता सकता है। आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। बैंक्स जो हैं HBL मेरी इतला के मुताबिक ये 3 DHAs के साथ इंटीग्रेटेड है, जिसमें DHA कराची है, रावलपिंडी है और DHA लाहौर है। और आप DHA आपके लिए ख़ास तौर पे स्कीम्स भी लाया है जिसकी वो एडवर्टाइजमेंट्स भी इस वक्त कर रहे हैं। तो DHA अगर आपको DHA के पोर्टल पे जाना है, प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है और इंस्टॉलमेंट पे करनी है, वो जो भी आपका एग्रीमेंट DHA के साथ होता है, पर पैसे आपको रोशन डिजिटल अकाउंट से करने पड़ेंगे। अगर आप रोशन डिजिटल अकाउंट यूज़ नहीं करेंगे तो एक बात याद रखिएगा कि वो पैसा रिपैट्रिएबल नहीं होगा। आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और आपको अपने बैंक को सील एग्रीमेंट वगैरह प्रोवाइड करना है, इंस्टॉलमेंट पे करनी है, बट रिमेंबर पे विद रोशन डिजिटल अकाउंट। अगर आप रोशन डिजिटल अकाउंट से पे नहीं करेंगे तो बैंक के पास कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा और वो आपको पैसे वापस ले जाने नहीं देगा। इसके बाद जो प्रॉपर्टी आप रोशन डिजिटल अकाउंट से खरीद देंगे उसको आप रेंट पे भी दे सकते हैं, और अपने बैंक को आपको बताना होगा कि जी ये प्रॉपर्टी मैंने रोशन डिजिटल अकाउंट के पैसों से खरीदी और अब ये उसका रेंट आला है, तो रेंटल एग्रीमेंट भी अपने बैंक को आप प्रोवाइड करेंगे। और रेंटल एग्रीमेंट प्रोवाइड करने के बाद आप हर माह, हर साल, हर 6 माह, इट्स योर चॉइस कि आपका क्या एग्रीमेंट है। आप अपना रेंटल गेन्स जो हैं वो बैंक में जमा कराएंगे और बैंक पाबंद होगा कि वो पैसे आपको जहाँ भी आप कहेंगे भेज देगा। पर एक बात याद रखने वाली है कि अगर वो प्रॉपर्टी आपने बेच दी तो
आप प्रिंसिपल अमाउंट तो वापस ले जा सकते हैं जो आप लाए थे, पर जो उस पर प्रॉफिट होगा वो आप 3 साल से पहले नहीं ले जा सकते। इसका रिकॉर्ड आपका बैंक मेंटेन करेगा। तो ये बात ध्यान में रखिए कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी आप 3 साल से पहले नहीं ले जा सकेंगे। अच्छा, आई एम कमिंग टू द वेरी एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। कस्टमर सपोर्ट जो अवेलेबल है वो जरा देखिए कि बैंक्स आपको लाइव कस्टमर सपोर्ट दे रहा है। और जब आप अकाउंट खोलने जाते हैं तो, और अगर आप इन द मिडिल ऑफ अकाउंट ओपनिंग आप समझते हैं कि अब आपको ज़्यादा टाइम हो गया, अव्वल तो आपको 15-20 मिनट, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, बट अज्यूम करते हैं कि आप बिजी हैं और आपको इतना टाइम नहीं, तो बैंक आपको सेव एंड एग्जिट का ऑप्शन देता है। बैंक आपसे कहता है कि जनाब आप एप्लीकेशन सेव कर लें, दोबारा आए, मैं सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे जहाँ से मुनक़ता हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक कंप्लेंट सेल, आप उससे बात कर सकते हैं। स्टेट बैंक इनसे डेली रिपोर्टिंग लेता है, और जैसे मैंने आपको बताया कि हम पब्लिक डिसेमिनेशन भी करते हैं। जो यूजफुल रिसोर्सेज हैं जो आपके काम आ सकती हैं, उसमें राइट पे देखें फीडबैक के लिए हमने अपनी ईमेल दी हुई है। लेफ्ट पे अगर आप देखें तो आरडीए की वेबसाइट है, एसबीपी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, और जो ब्रोशर्स हैं अगर आप नीचे देखें तो यूट्यूब, नीचे ये आपकी राइट पे जितनी भी आपको ये साइट्स नज़र आ रही हैं इनके ऊपर आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई ट्राई टू रश, बट मैं 3-4 जस्ट टू रीकैप व्हाट आई सेड। पहली बात, ये दूर रहकर भी पास इस हुकूमत पाकिस्तान का इनिशिएटिव है, जिसको जो स्टेट बैंक जिसको लेकर चल रहा है, और वी आर फैसिलिटेटिंग ओवरसीज पाकिस्तान। दूसरी बात, आप जहां भी हो दुनिया में, आपको ये अगर रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए पैसे लाए हैं तो ये आप वापस ले जा सकते हैं। तीसरी बात, आपके तमाम राइट्स प्रोटेक्टेड हैं, और सॉवरेन डेट है तो हुकूमत पाकिस्तान इसकी जिम्मेदार है। जो पैसा भी आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में जमा कराएंगे, हुकूमत पाकिस्तान उसकी जिम्मेदार रहेगी, चाहे वो इस्लामिक हो चाहे वो कन्वेंशनल हो। ये एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है। इससे आप बिजली के बिल से लेकर बच्चों की फीस, प्रॉपर्टी पेमेंट्स, स्टॉक मार्केट, यू नेम इट, डिपेंडिंग ऑन द बैंक। ना सिर्फ ये है कि बैंक आपको चेकबुक भी जारी कर देगा, बैंक आपको एटीएम कार्ड भी दे देगा, और बाद बैंक अब क्रेडिट कार्ड की भी फैसिलिटीज़ के ऊपर ला रहे हैं, सो दैट कि आप लोगों को वो फैसिलिटी भी हासिल हो जाए। और गोइंग फॉरवर्ड वी आर इनकरेजिंग बैंक्स के वो मॉर्गेजेस भी करें, लेंडिंग भी करें आपके लिए। सो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, होपफुली द फ्यूचर इज गुड। अच्छा, इसमें कुछ सवालात हैं वगन साहब, आपकी इजाज़त से मैं क्विकली कुछ सवालात जो लोगों के जहनों में आते हैं वो बता देता हूँ। अच्छा, एक तो जो टैक्स है वो सिर्फ 10% है, विदहोल्डिंग टैक्स वो हुकूमत पाकिस्तान काटती है, वो आपके प्रॉफिट पे सिर्फ वो कटेगा और कोई टैक्स नहीं। पर अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो देन बी केयरफुल, और क्योंकि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो, और आपकी ओमान में भी और पाकिस्तान में भी बिजनेस है, तो आइडियली आपको अपने टैक्स मैन से बात करनी है। जो भी आपका टैक्स लॉयर है या अकाउंटेंट है, वो आपको बेहतर एडवाइस कर लेगा। बट अगर आप सिंपल एक सैलरीड पेशा आदमी हैं जो बिजनेस वगैरह नहीं करते और जिसकी टैक्स कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, उनके लिए कोई इशू नहीं है, वो सिंपली उनको 10% टैक्स ही पे करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, अगर आपकी प्रॉपर्टी वगैरह पहले से पाकिस्तान में मौजूद है या आपके पहले से अकाउंट मौजूद हैं तो वो रहेंगे, उनकी हैसियत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट रीपैट्रिएबिलिटी का जो फ़ायदा है वो उसी सूरत में उठाया जा सकता है जब आप रोशन डिजिटल अकाउंट खोलें और उसमें ट्रांजैक्ट करें, जो मैंने आपको बार बार कहा। अमाउंट जो भी आपकी है वो फुली रिपैट्रिएबल है, यू कैन टेक इट बैक द डे द टाइम यू वांट। ऑल यू नीड टू डू इज़ टू गिव सिंपल इंस्ट्रक्शंस टू योर बैंक कि जी मेरे पैसे वापस भेजें और ये अकाउंट में भेजें। बैंक विल डू इट विद नो क्वेश्चंस आस्क्ड, और वो पैसे आप एक पलक में, इट्स अ मैटर ऑफ सेकंड्स, द बैंक उसको आपको वापस भेज देगा और कोई सवाल भी नहीं करेगा। थैंक यू सो मच मोहसिन, वगन साहब और तमाम लोग, थैंक यू सो मच। Thank you, Irfan Saab. Thank you for your time and your, as always, you've done a brilliant presentation, very informative. Now, I would like to, your webinar would not have been possible without the support of our HPL Oman office. I would like to welcome and hand over to Mr. Ghulam Al-Balushi, our acting country manager there. Mr. Balushi, thank you to you and your team for putting this together. I'd just like for you to say a few words, because you're obviously our senior executive on ground in Oman, and then we'll take it to the Q&A part of the questions.
Mr. Belushi. Mohsin, he can unmute. इनको है available. Mr. Belushi, if you'd like to unmute, I think you're on mute. Thank you, everyone. Thank you very much for the participation and all. This was basically our pleasure in HBL Oman to introduce basically and to organize this. First of all, I would like to thank, His Excellency Hassan. We met almost, I think, 3 weeks back, and it was basically his idea to arrange something for the Pakistan community and for the Pakistani people and all. Yes, the participants are not up to that level, but I think whoever is participated today, they can have the word of mouth to everyone and all. And I would like also to thank Mr. Irfan also. It was really a nice presentation, short and simple, and I also got an idea about it. So the same thing I think we will do from here by marketing all this initiative. That's it from my side. Thank you everyone for the participations. HBL Oman is always there to help and to facilitate the transfers and any queries and everything. We are there always for you. Thank you very much. Thank you, Mr. Belushi. Now we will move to a 15-20 minute Q&A session. I understand there are some people who have questions that they've written on the chat. To my understanding, हमने ज़्यादातर questions chat के ऊपर answer कर दिए. But if there are more questions, we're happy to take those. After which we will end the session unless there's anything else that we can do. If there's anyone who would like to ask questions, please use this opportunity. Mr. Mohsin, may I say a few words and a few remarks? जी, please. बिल्कुल, absolutely. जी, पहले तो इरफान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव और सलीस ज़बान में हमें रोशन डिजिटल अकाउंट्स के बारे में बताया। मुझे उम्मीद है और मैं बखूबी इस अंदाज़े से वाकिफ़ हूँ कि हमारे बहुत सारे जो पाकिस्तानी बहन भाई ओमान में रहते हैं उनके लिए बहुत आसानी होगी कि हम उर्दू ज़बान में और अपनी कौमी ज़बान में उनको सलीस तरीके से बता सकें। आपका इरफान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और सेकेंडली 2-3 ऑब्जर्वेशन थी। एक तो ये काइंडली बताइएगा कि मोहसिन साहब हबीब बैंक कितनी करेंसीज में डील कर रहा है? इरफान साहब ने ये पॉइंट उठाया था, नंबर 1। और सेकेंडली ये जो 8 बैंक्स हैं उनमें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान मिसिंग है, तो क्या अगले फेज में कोई नेशनल बैंक भी आएगा? और पहले और हबीब बैंक कितने करेंसीज में डील कर रहा है? So I'll answer Vagan साहब the first question. हमारी इस वक्त जो करेंसीज हैं वेरी क्विकली उसके अंदर करेंसीज को ऐड करते जा रहे हैं। इस वक्त हम 4-5 करेंसीज को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर डॉलर है, जीबीपी, यूरो है। लोकल करेंसीज में हम वेरी क्विकली वर्किंग ऑन AED एंड सऊदी रियाल, और ओमानी करेंसी को भी हम कर सकते हैं। कनेडियन डॉलर के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। PKR is by default the currency that is available as it is the 4th currency for you. लेकिन जैसे हमारे पास इंटरेस्ट आता जा रहा है, we're opening up currencies. For now, it is these 4 currencies that I mentioned, which is rupee, dollar, GBP, and euro. But in future, like I said, all banks, including us, we're very quickly working on adding many more currencies. So we can add many more currencies at short notice, and inshallah, we will do that. To your question about National Bank of Pakistan's addition, I will request Irfan Saab to maybe illuminate. Ambassador साहब, ये phases में हो रहा है. So depending on के कौन सा बैंक जल्दी तैयार हो जाता है, because इसमें जो बहुत ही अहमियत है, I think सब लोगों के लिए समझने वाली बात है, वो ये है कि इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग IT इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बहुत सख्त पैरामीटर्स बनाता है इससे पहले कि हम किसी को डिजिटली अकाउंट खोलने दें। तो इसीलिए मैंने जब अपनी प्रेजेंटेशन दी थी तो सबसे अहम बात ही उसमें यह है कि जब ये पाकिस्तानी अकाउंट खोलें तो वो अकाउंट विद कॉन्फिडेंस खोलें कि ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। डॉक्यूमेंटेशन वो हैं जो कि फैटफ की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करती हैं, और जो हमारे सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स
डिजिटली ऑपरेट करने के हैं वो ग्लोबल और इंटरनेशनल लेवल के हैं, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानीज या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज उन एनवायरनमेंट्स में ऑपरेट करते हैं जो कि हाईटेक हैं, तो हमें उस सब को मैच करना था। तो नेशनल बैंक भी उसी तगदो में लगा हुआ है और बाकी बैंक्स की तरह, और जैसे ही वो इस म्यार पर पूरे उतरेंगे उनको भी हम इजाज़त दे देंगे। तो इस वक्त कम्पिटिटिव वर्ल्ड है, नेशनल बैंक भी अभी बहुत जल्दी इसमें इंशाल्लाह आएगा। Mohsin, there are a couple of questions that are written in the chat window, and I think we can answer them live rather than type it out, ताकि सब इसको सुन सके। जो एक question आया हुआ है, it's about the monthly service charges on the account, and if we want to maintain कोई minimum balance requirement है या नहीं है। तो everybody who's on the forum right now, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि HBL के कोई monthly service charge नहीं है on the RDA account, and neither there is a minimum balance requirement for the account. Additionally, HBL ने कोई कैप नहीं लगाया into the amount of remittances that can be sent. तो आप जितना चाहें अपने अकाउंट से भेज सकते हैं into your RDA account. ठीक, ये अभी तक तो यही सवाल थे। Can my family in Pakistan withdraw money? If you'll allow me, there's one or two more questions. I think there's a question कि जी INPC की availability रुपीस में, IC नूरुल्लाह साहब ने उसका जवाब दे दिया है कि वो रुपए में और डॉलर्स में। हमारे एक भाई हैं जिन्होंने लिखा है कि he has been trying to open an account for the last 10 days. हम आपका नाम नोट कर रहे हैं सर, we will get in touch with you. शाजी, if you can also take a note of the gentleman's name, आपसे रब्ता करेंगे। हमारी कोशिश यही है कि हम सबके अकाउंट्स within 48 hours खोलें। जहाँ पे हमारी तरफ से कोई किसी किस्म का डिले है, I would like to apologize on behalf of HPL, and we will get in touch and very quickly facilitate and assist you. प्रॉपर्टी के ऊपर सवाल आया था, आई थिंक वो भी नूरुल्लाह साहब ने मैंने देखा है जवाब दे दिए। इफ़ यू अगर आप बाहर से पैसे लेके आएंगे और प्रॉपर्टी खरीदेंगे, वो पैसा आप वापस लेके जा सकते हैं। यू आर एबल टू रिमिट दैट मनी बैक एंड दैट मनी इज फुली रिपेट्रिएबल। सिमिलरली आपका एक सवाल था यहाँ पे ऑन चार्जेस, आई थिंक यू आंसर्ड मिनिमम बैलेंस, देयर इज नो मिनिमम बैलेंस एट HBL। करेंसीज का जिक्र किया था इरफान साहब, आपने जिक्र किया था एडिशनल प्रोडक्ट्स। सो we're happy to report as one of the few organizations, हमने क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी और ऑटो लोन की फैसिलिटी भी शुरू कर दी है, and we're able to offer that to our customers. I see a couple of raised hands and will request one by one. Zuhair कराची वाला साहब, सॉरी अगर मुझसे मैं भी आपसे पूछ लूं कि मॉर्गेजेस पे तो अभी आप काम नहीं, अभी आपने किया मॉर्गेज के ऊपर हम बड़ी जल्दी काम कर रहे हैं। हमारा नॉन रेजिडेंट का मॉर्गेज का प्रोपोजिशन तैयार है। We will be offering that very quickly. अभी भी हम सिलेक्टिव बेसिस पे कर रहे हैं, बट एक पूरी प्रोडक्ट को हमने तैयार किया, वो हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसको भी खोल देंगे। Good afternoon. This is Zohair. Can you hear us? जी, we can hear you. हाँ। Zohair sir. बल्कि this is also a kind of not particularly on this account, but it may concern as a non-resident Pakistani. For years we have been out, और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि we have been remitting money on request of the various governments कि please आप remit करें, and we have been remitting in dollars and then we were asked to convert into rupees, which we did. अब मसला ये है कि ये हमने पैसे वहीं पड़े हुए in various forms. अब हमें we are not allowed to bring it back. In such a situation, what is the state bank's? I know there is no repatriation guarantee on that, but क्योंकि ये पैसे दिए गए थे government of Pakistan को in various time to support government of Pakistan, तो एक किस्म की I think some policy should be there. This is not connected to the Roshan digital account, but this is connected to the overall. These are the standard questions I've been hearing, talk to a lot of senior, Pakistanis कि हम वो पैसे का हम क्या करें, हमें अब जरूरत है बाहर because they acquired a nationality, तो वो पैसे available नहीं है। तो I'm just making observation because your state bank के लोग यहाँ है, they may think about it how to address that, because that also would give a kind of a long-term comfort zone for the people. तो ठीक है, ये तो बड़ा it's quite innovative and it's very useful. You can control the movement of the funds, but that policy का अगर कुछ आ सकती है तो इसमें बहुत से Pakistanis, genuinely they'll be very comfortable to invest that. I'm sorry I'm taking a little time, but I wanted to Ambassador Sabri बैठे हुए, it's good to get that across to you. Thank you. Thank you, Zohair. Sir, thank you. I will request again Irfan Sahab, because this is a policy matter for him to answer. I think देखें, एक तो जो आपने जैसे पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट था या आपने कोई और बॉन्ड वगैरह खरीदे थे, तो वो तो दे आर रिपैट्रिएबल एनीवे।
और वो आप जब भी उनकी मेच्योरिटी डेट आती है। पर अगर आपने पाकिस्तान में भेजे थे पैसे और वो रुपए में कन्वर्ट हो गए या आपने उसकी प्रॉपर्टी ले ली, तो उनकी कन्वर्जन का कोई तरीका नहीं है, और वो आइंदा भी इस सिलसिले में आपको इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान कोई फैसिलिटेशन नहीं करेगी। जो जो चीज़ हुकूमत पाकिस्तान ने कमिट की थी स्टेट बैंक उसी को ऑनर कर सकता है, और जो हमने कमिटमेंट्स नहीं की हम उनको अनफॉर्चुनेटली ऑनर नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज मतलब गिवन है कि अगर आप पाकिस्तान में पैसे रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए लाएंगे तो ले जा सकेंगे, और अगर आपने किसी और पहले आपने जो एसेट्स एक्युमुलेट किए हैं पाकिस्तान में वो अनफॉर्चुनेटली रीपैट्रेबल नहीं है। जी परवेज साहब, दिस इज व्हाट आई हैव टू से। जी थैंक यू इरफान साहब। मोहम्मद परवेज साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी साहब। मेरा 2 क्वेश्चन है। एक तो ये कि कितने सेम बैंक अकाउंट में कितने अकाउंट खोल सकते हैं, मतलब पाकिस्तानी करेंसी में भी खोल सकते हैं और उसमें भी खोल सकते हैं एट अ टाइम। और सेकंड क्वेश्चन ये, अगर मेरी प्रॉपर्टी ऑलरेडी उधर है, इन्वेस्टमेंट की है, और मैं इंस्टॉलमेंट देना चाह रहा हूँ जो ऑलरेडी है, वो मैं ये यूज कर सकता हूँ यही पोर्टल? So परवेज साहब, टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपने कैन आई ओपन 2 अकाउंट्स सेम टाइम? जी जी जी, आप यू कैन ओपन मल्टीपल करेंसी अकाउंट्स विद द सेम बैंक। यू कैन, आप ये भी कर सकते हैं, यू कैन आल्सो ओपन 2 रोशन डिजिटल अकाउंट्स विद 2 डिफरेंट बैंक्स एज वेल। सो दैट इज वेरी मच पॉसिबल। हमारे पास बहुत से कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने रुपये में भी खोला हुआ है, डॉलर में भी खोला हुआ है, और कुछ ने ऐसे हैं जिन्होंने 3 करेंसीज में भी खोला है। दैट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। यू कैन देखिए रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू यू कैन ब्रिंग रेमिटेंसेज इनटू पाकिस्तान। अगर इफ यू वुड लाइक टू यूज दैट टू मेक लोकल पेमेंट्स ऑफ एनी सॉर्ट, जिसके अंदर आपने इंस्टॉलमेंट देनी है, यू कैन एब्सोल्युटली यूज द रोशन डिजिटल अकाउंट कि आप उसके थ्रू इंस्टॉलमेंट्स भी पे कर सकते हैं। रिपेट्रिएबिलिटी के हिसाब से इरफान साहब ने बड़ी क्लियरली वजाहत कर दी थी कि रिपेट्रिएशन वाले जो एवेन्यूज हैं वो स्टेट बैंक ने क्लियरली रेफरेंस कर दिए कि आप पैसा लाएं या पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करें, DHA प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करें, CDC के अंदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें। दोज मनीज यू कैन रिपेट्रिएट एंड टेक बैक। जो पैसे आप अदर देन दोज लेके आएंगे वो आप लोकली ट्रांसफर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू। आई थिंक जो ये जो चैलेंज है होगा, मेरा ख्याल है इसके ऊपर थोड़ी क्लैरिटी चाहिए होगी कि जो प्रॉपर्टी ये पहले से ही खरीद चुके हैं, लेट्स से इन्होंने 50% पेमेंट दे दी है और 50 रह गई है, तो इनके लिए एक मसला खड़ा हो सकता है उसमें। तो ही शुड बी वेरी केयरफुल कि वो पैसा जो लाए नहीं थे आप उसको ले जाने भी नहीं देंगे। ये काइंडली ध्यान में रखिएगा। तो आई विल लाइक टू लुक डीपर इनटू दिस एस्पेक्ट। ये ना हो कि इन्होंने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी यहाँ पहले से खरीदी भी हो और उसमें मजीद पैसे लग जाएं तो और हम फिर इनको वापस ना ले जाने दें। तो ये आई थिंक यू शुड डू योर होमवर्क। आई थिंक आप इस सिलसिले में अभी बैंक से मैटर सेपरेटली टेकअप करें प्लीज। मेरा कहने का मकसद ये था इरफान साहब कि जो परमिसिबल इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसमें आप पैसा बाहर लेके जा सकते हैं, उसमें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, उसमें CDC की इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आप स्टॉक एक्सचेंज में करेंगे, और नया पाकिस्तान है। अदर देन दोज आप पैसा जरूर ला सकते हैं लेकिन आप रिपेट्रिएट उसको नहीं कर सकेंगे। बट अगर इफ देयर इज अ स्पेसिफिक क्वेश्चन हम उसको ऑफलाइन भी ले सकते हैं। प्लीज फील फ्री टू आस्क अस। आई विल जस्ट स्क्रॉल डाउन फॉर any more Mohsin, I have a question here. Sorry, and that's for Shazia. It's just a question, basically. Yeah, it's to Mr. Irfan. Irfan Saab, what about the basically the Pakistani origins who got the Omani passport, jinke paas Omani passport hai, but again I think they are holding a couple of documents like the Shinakhti card or something like that. What about them? Can they put money into the Roshan digital account? उनके लिए allowed है या allowed नहीं है basically? जी उनके लिए allowed है जी, बिल्कुल allowed है और वो कर सकते हैं पाकिस्तान उनके लिए। बट जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन कार्ड है। तो यू हैव टू कॉन्टैक्ट योर एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी से आपको बात करनी होगी, वो आपको फैसिलिटेट करेंगे। तो अगर आपके पास पॉइंट ऑफ ओरिजिन कार्ड होगा POC तो तब भी आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। काइंडली आप पाकिस्तानी एम्बेसी से रब्ता करें, दे विल हेल्प सॉर्ट आउट द मैटर इंशाल्लाह। थैंक यू। Mohsin, another good question in the chat window is whether or not HBL can be requested to provide a good exchange rate for the services being rendered.
तो इसके ऊपर वी लाइक टू पॉइंट आउट कि वी आर गिविंग रियली गुड फाइन रेट्स जो हैं हमारी मार्केट से ज़्यादा कंपेटिटिव रेट्स है व्हेन इट कम्स टू कन्वर्जन, और जो हमारी ट्रांसफ़र की जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं, तो जो जिन साहब ने रेहान अहमद साहब ने जिन्होंने पूछा है कि वी कैन ऑफर बेटर रेट्स, तो द आंसर इज यस, वी हैव बेटर रेट्स जो हमारे अभी चल रहे हैं मार्केट के अंदर, उससे हम फाइनर रेट्स ऑफर कर रहे हैं ऑन द रोशन डिजिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। थैंक यू फॉर आंसरिंग दैट। एक और क्वेश्चन था कि इफ आई हैव अ प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान और एंड आई वांट टू सेल इट, हाउ कैन आई गेट अमाउंट ट्रांसफर्ड? सो नूरुल्लाह साहब ने जवाब भी दे दिया एज आई एम टॉकिंग। आप उसके अंदर लोकल ट्रांसफर सेल प्रोसीड्स नहीं क्रेडिट कर सकते। द रोशन डिजिटल अकाउंट इज मेंट फॉर टू प्रमोट रेमिटेंसेस एंड फॉर यू टू बी एबल टू रिमिट मनी इनटू पाकिस्तान। लोकल क्रेडिट्स अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर अलाउड नहीं। आई सी अनदर रेज्ड हैंड, मिस्टर यासिर लियाकत। जी लियाकत। Yasir Liaquat did not have his mic connected, so I think he is unable to speak. Okay. Thank you. Acha Mohsin, while they're connecting to the mic, another question is, can my family in Pakistan withdraw money from this account? तो yes, इसका आंसर है yes, you can withdraw. पाकिस्तान में रहते हुए आप अपना रोशन डिजिटल अकाउंट आपकी फैमिली एक्सेस कर सकती है। हमने मल्टीपल मीडियम्स दिए हुए एक्सेस करने के लिए। इसके लिए आपके पास एक डेबिट कार्ड भी है और हमने चेकबुक की फैसिलिटी भी दी हुई है। तो अगर आपने चेक अपने फैमिली मेंबर को दिया हुआ है साइन करके, तो आप ये अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हैं। और आप ऑब्वियसली अपने डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, आपकी फैमिली भी एक्सेस कर पाएगी। जी, और एक और क्वेश्चन था अबाउट कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग चार्जेस। तो उस पर मैं सिर्फ आप सबको अपडेट करना चाह रहा था। एज अ बैंक हम भी उसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं, हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक से भी बात कर रहे हैं ताकि वी कैन ब्रिंग डाउन एंड रैशनलाइज ये चार्जेस। आई कैन ऑल्सो टेल यू हम स्टेट बैंक से भी करके कोलैबोरेशन के साथ सारे बैंक से हम कोशिश कर रहे हैं कि वी कैन ब्रिंग these charges down to assist and help our fellow non-resident Pakistanis. So हमारी पूरी कोशिश है कि both internally within the bank and working with state bank हम इसको इस्तेमाल करके and we can bring it down. Mohsin, another question on the chat window is it possible to prepare a draft from your RDA account and can somebody from my family member collect it from the nearest branch in Pakistan? तो इसका आंसर है कि yes, आप पे ऑर्डर्स और ड्राफ्ट आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं जिसके ऊपर आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपके बिहाफ पे ये इंस्ट्रूमेंट्स इशू हो जाएंगे और आप अथॉरिटी लेटर देंगे किसी डेजिग्नेटेड मेंबर को, तो उनको भी कलेक्ट करने की अथॉरिटी है आपके बिहाफ पे। तो आंसर इसका ये है कि yes, we can prepare a draft from your account and your family member can collect it from the nearest convenient branch available in Pakistan. जी। एक और क्वेश्चन था मिस्टर अनवर बिलांद, dual citizenship. I'm working in Oman with employment visa on my UK passport. Can I still open? You can open, sir, an RDA from Oman, and for that we will just need your Pakistani passport की copy, as well as your your visa copy that is on your UK passport to certify that you're of Pakistan origin, you're holding multiple dual citizenship, and we have a number of customers who can do that. So you will have to provide both documents, and we will absolutely be able to do that for you. The Pakistani passport is to establish your roots to Pakistan, and the visa will help determine that you are currently based outside of Pakistan and employed currently in Oman. Islamic certificates के ऊपर सवाल था, रहमान परवेज साहब ने जवाब दे दिया। Islamic certificates जो हैं, they are not restricted to Islamic banks. हर बैंक ये कर रहा है, we are also offering Islamic certificates. हम भी issue करते हैं. All banks have the ability to assist you with Islamic Naya Pakistan certificate, and we're happy to assist you as well. जी, हमारे पास एक आखिरी अभी मैंने देखा एक और सवाल आया इस्लामिक बैंकिंग ऑप्शन का। जी, हमारे पास इस्लामिक बैंकिंग शरिया कंप्लाइंट अकाउंट्स भी हैं और शरिया कंप्लाइंट इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट भी है, एंड वी कैन सर्टनली ऑफर यू बोथ इस्लामिक बैंकिंग अकाउंट एंड इस्लामिक बैंकिंग एनपीसी। शेख साहब, असगर साहब, जी बिल्कुल, आप अपने आरडीए अकाउंट से आप अपने बच्चों को यू कैन सेंड मनीज अब्रॉड for university fees. As long as the money is coming into your RD account from abroad, you can use that to repatriate it to your son's account abroad for university fee. Help to open Roshan account, Azizullah Sumru Sahab, if you would like assistance, we will हम आपसे राब्ता भी कर लेंगे अगर chat window में अगर आप अपना number या email address दे दें. Otherwise, you can visit the HPL website.
आपको वहाँ पे ई बैंक रोशन डिजिटल अकाउंट का लिंक नजर आएगा, आप गूगल भी कर सकते हैं, and that is a simple process. We're happy to onboard you. If you require our assistance, you're welcome to leave your name, your number or your email address, or I'll ask my team to take it down, और हम आपसे राब्ता भी कर लेंगे. Mohsin, there's another question जो कि I believe इरफान साहब बेहतर हमें जवाब दे पाएंगे. What is the surety that the new government will not change the policy? Interestingly, governments ऐसे काम नहीं करती बिल्कुल भी, और जब कोई भी गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी लाती है, आने वाली गवर्नमेंट के लिए लाजिम होता है कि उस पर अमल करे. तो दिस इज ये पॉसिबल ही नहीं है. और जैसे मैंने आपको पहले अर्ज किया ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन दैट आपके जो अकाउंट्स हैं वैसे ही प्रोटेक्टेड हैं, बट एक दफ़ा आपने जो भी बुक कर दिया, लेट्स से कि आपने नया पाकिस्तान सिंडिकेट में इन्वेस्ट कर दिया, तो हुकूमत पाकिस्तान पाबंद है कि जब तक कि आपकी इन्वेस्टमेंट रहे आपको वो रिटर्न देगी. तो ये जो आपको जो बात ऑनर करनी है वो हुकूमत पाकिस्तान ने करनी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं करनी है. तो इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. वी आर टॉकिंग अबाउट सॉवरन है. तो मैं और एहसन वगान साहब, हम सब लोग सरकारी मुलाजिम हैं, और हम गवर्नमेंट की बात हमेशा ऑनर करेंगे, वो जो भी होगी. थैंक यू इरफान साहब. There's another question in the chat जी कि ये मेरा अगर पहले से बैंक अकाउंट पाकिस्तान में है, और is it possible I can use ATM cards for 2 accounts? तो ये वाला आपका RD अकाउंट है, इसका सेपरेट डेबिट कार्ड होगा और वो हम आपको ओमान में डिलीवर कराएंगे. We will send that to you. Unfortunately एक ही कार्ड के ऊपर दोनों वो लिंक नहीं हो सकेंगे, क्योंकि इसके फीचर्स थोड़े से अलग हैं और इसकी जो हकूक हैं वो इरफान साहब ने बताया था थोड़े डिफरेंट है. सो वी विल इशू यू अ डिफरेंट ATM कार्ड और हम आपको उसको ओमान में आपको भिजवाएंगे. The other question is HPL offering Islamic banking accounts? Yes, we are offering Islamic banking full suite services, including accounts and Islamic NPC, Naya Pakistan certificates. Thank you. We also have a few other questions. Akhtar Salim Saab, we have some raised hands. Akhtar Salim Saab, any other questions? Thank you for your comments, for your participation. Ji. At the end, I would like to Aziz Saab, aapka number humne note kar liya. I just wanted to thank everyone. At the end, I would like to appreciate the efforts of our country manager in Oman, as well as particularly His Excellency Vagan Saab, State Bank's entire panel, including Irfan Saab and the entire team, Rahman Saab, and everybody who's made this possible, along with my team that is on call today from within Pakistan and in Oman. In my view, just to summarize, Roshan Digital Account एक बहुत ही बड़ी incredible opportunity है, जिसकी वजह से Pakistanis all over the world, they can participate. This is a national cause because it helps our country. The account has been created specifically and specially हमारे बहन भाइयों के लिए जो मुल्क से बाहर रहते हैं, ताकि वो हमसे ताल्लुक maintain कर सकें. They can participate in this nation building opportunity through various investment avenues, including property, real estate, Naya Pakistan certificates. On behalf of HPL, I want to thank you for attending the webinar. We recognize this tremendous opportunity to reach out across the globe by the regulator and by State Bank. RD is an incredible opportunity. We are fully committed on behalf of HPL to promote, assist you, and this is a very, very high priority initiative for our entire bank. We hope the session today was beneficial for you, and we look forward to you opening your account with HPL. Kindly do connect with us for any queries that you may have. My team on call has taken down your details. Wherever you've sent us in the chat box, we will be in touch with you and are ready to help you in any of your queries. Thank you very much, all of you, and Allah Hafiz. Please stay safe and have a good day, sir. Ladies and gentlemen. Thank you, Chief. Thank you very much. Thank you, Mohsin Saab. Thank you, Your Excellency. Thank you, Irfan Saab. Thank you. Khuda Hafiz, everyone. Thank you. Khuda Hafiz.